Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us do chapter 8 non-finites of class 8 standard. Before we start, I would like to thank all the children who has given such an awesome comments to me. थैंक्स ए लॉट डियर चिल्ड्रन. मैं यहाँ हर किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ. थैंक्स ए लॉट वंस अगैन. कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड डू काइंडली शेयर इट विथ योर जूनियर्स ऑल्सो. थैंक्स ए लॉट वंस अगैन. नाउ लेट अस कंटिन्यू. Verbs that are limited by the person or the number of the subject are finite verbs. जो verbs हम generally use करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो tenses को follow करते हैं, वो है finite verbs. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हमारा चैप्टर है, verbs that are not limited by the person or the number of the subject और नॉन फाइनाइट verbs जो टेंसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल भी है तो वर्ब इसका सेम रहता है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. लुक एट द टेबल गिवन बिलो. सी नॉन फाइनाइट जो है वो क्लासिफिकेशन इनका हुआ है 3 फॉर्म्स में. इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरन. इन्फिनिटिव 2 फॉर्म वाले जो वर्ब्स हैं इनको इन्फिनिटिव्स कहते हैं. एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरन जो इंक फॉर्म है. जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे बताती हुई जाऊंगी. सी ये रिमेंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंसेस हैव टू अग्री टू द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन, सो दे चेंज फॉर्म. जनरली वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. नॉन फाइनाइट वर्ब जो है डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म. ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. जो भी टेंस है या जो भी पर्सन है, बट ये वर्ब सेम रहता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वर्ब विदाउट tense. Now let us look at worksheet 2. He agreed to play the match. ये to play जो है ये infinitive है, to form verb है. He agreed to play the match. They agreed to play. We agreed to play. I agreed to play. To play change नहीं हो रहा है ना, तो ये सेम है. तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम infinitive कहते हैं. Now let us look at B part. Complete the sentences given below by filling the blanks with the infinitive form of the verbs in the brackets. Dash him singing is a pleasure. Bracket में hear दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखो to hear. Infinitive form बोला है. Infinitive form means to form of the verbs. My idea of happiness is to spend time with my family. Your job is to deliver the packet on time. This is very easy children. जो भी verb यहाँ पे दिया हुआ है ना उसके आगे आपको to add करना है. The baby doesn't want to go to sleep. Everyone has the right to speak their mind. Ritika is keen to meet her friends. To see them together was a pleasant experience. I like to eat cereals in breakfast. They want to dance. Now let us look at worksheet 3. Given below is a list of verbs that are generally followed by an infinitive. जैसे ये verbs जो हैं हमेशा एक infinitive को follow करते हैं. Now let us look at B part. Use at least 10 of the verbs given in the box on the previous page in your own sentences. Make sure that these verbs are followed by a to infinitive. Previous page में जो दिए हुए हैं उसमें से आपको verbs को use करके यहाँ पे आपको sentences बनाने हैं. And with the verb you need to be sure to follow. यहाँ पे जैसे मैंने लिया ना to compete, ऐसे to infinitive को यहाँ पे पीछे आपको use करना है. I agree to compete with you. Agree मैंने वहाँ से लिया है, मेन वर्ब है. To compete जो है to infinitive है. They usually forget मैंने प्रीवियस पेज से लिया है. To complete the homework. ये compete है, ये complete है. To complete the homework. Ritu decided to stay. ये to infinitive है जो मैंने लिया, और decided ये verb मैंने लिया है प्रीवियस पेज में से. To stay away from the matter. They failed to organize the party. We planned to go for a picnic. She refused to help me. I hope to see you soon. Students managed to hide their mistakes. I wish to eat an ice cream. They want to avoid the topic. Now let us look at worksheet 4. A to infinitive can be used in various patterns. Study the following sentences and understand these patterns. To infinitive को आप different types में use कर सकते हो. We had explained it over here. जैसे कि they hope to receive, she refused, ये verb है, ये infinitive है.
मेन वर्ब भी होता है चिल्ड्रन, टू इन्फिनेटिव के साथ साथ एक मेन वर्ब ज़रूर होता है सेंटेंस में. Complete the following sentences using an infinitive construction. The company wanted to promote you. You can use words of your choice also children over here. The wanted is the main verb here. Wanted यहाँ पे main verb है. To promote, this is to infinitive. यहाँ पे हम infinitive को add कर रहे हैं. Now let us look at second one. The minister promised to set up a multi-speciality hospital in the village. Promised is the main verb here. To set up. This is the infinitive which we have added over here. I somehow managed to convince him on the matter. To convince, this is the to infinitive. Managed is the main verb. We need a compass to travel on sea. Need is the main verb here. To travel is the infinitive. Ask a plumber to repair the leaking pipe. Ask is the main verb here. To repair is the infinitive. Now let us look at sixth one. The teacher will explain to us how to write the answers of the questions. Will explain, यहाँ पे explain जो है ये main verb है, will helping verb है, to write infinitive है. See, एक sentence में कितने सारे verbs हो सकते हैं. Helping verb, main verb and to write to infinitive है. Now let us look at the seventh one. Can you tell me where to get this book? Question mark. The doctor advised the patient to do exercise. Advised is the main verb here and to do is the infinitive here. I expected to get the work done by him. I expected him to help me. It was wrong of the film star to comment upon the fan. It is difficult for me to solve this question. अब इसमें बताओ कि इसमें कौन सा है मेन वर्ब. इसमें ईज इज़ द मेन वर्ब. यहाँ पे ईज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है. जनरली ईज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, बट जिस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब का काम करते हैं. सो ईज इज़ द मेन वर्ब हियर. और टू सॉल्व जो है ये क्या है? दिस इज़ द टू इन्फिनेटिव. ओके, now let us look at the 13th one. It is essential for the residents to maintain peace in the locality. Is the main verb here. To maintain is the infinitive over here. They are expecting the tenants to renovate the building. To renovate, ये यहाँ पे infinitive है. Now let us look at worksheet 5. The bare infinitive. Bare infinitives उन words को कहते हैं जिनके पीछे to use नहीं होता है, बट ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन. तो मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट बता रही हूँ. इन केस ऑफ डेयर एंड नीड वी यूज टू इन्फिनेटिव इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जैसे यू नीड टू लर्न जर्मन, यू नीड नॉट लर्न जर्मन. यहाँ पे जब आप नॉट को यूज़ करोगे इस सेंटेंस में, यू नीड नॉट लर्न जर्मन, तो यहाँ पे ये टू लर्न जो है यहाँ लर्न में चेंज हो गया, यानी ये बेर इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है जब आप नेगेटिव में लिखते हो. कौन से वर्ड्स हैं ये? डेयर और नीड है. रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. नाउ लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज. Read the sentences given below. There is one error or omission in each sentence. Discuss with your friends and rewrite the sentences correctly in the given spaces. The teacher made him to stand. The teacher made him stand. To नहीं आएगा. This is a bare infinitive. The teacher made him stand. You need not to do it. अभी अब मैंने बोला था ना कि need के बाद to नहीं आएगा जब आप not लिखोगे. You need not do it. वापस यहाँ पे to नहीं आएगा. You need not do it. Let them to enter the room. Let them enter the room. यहाँ पे to नहीं आएगा. Let them to enter the room नहीं है. This is wrong. Let them enter the room. You did not to talk to me. You did not talk to me. To नहीं आएगा. अभी हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि did के साथ जब आप not में नेगेटिव में सेंटेंस लेते हो तो to नहीं आएगा. Bid them to go out. Bid them go out. I must to reach my school by 7 a.m. ऐसे तो हम कभी सेंटेंस नहीं बोलते हैं ना, ये तो आपको पता है कि I must के साथ हम to को कभी यूज़ नहीं करते हैं. तो क्या आएगा? I must to reach my school by 7 a.m. Now let us look at the 7th one. You ought drive slowly in residential areas. ये भी हमने बचपन से सीखा है कि ought के साथ to यूज़ होता है. 6th 7th स्टैंडर्ड में हमने इसको ऑलरेडी सीख लिया था कि ought to, okay? You ought to drive slowly in residential areas. I have write a few letters before I go to bed.
I have to write a few letters before I go to bed. I used to study late at night during those days. I used to study late at night during those days. ये यूज टू फॉर्म है, इसको भी जनरल लैंग्वेज में अक्सर यूज़ करते हैं. शी इज़ यूज टू इट, यानी उसकी वो हैबिट है. यूज टू का मतलब हैबिट में होना है. आई यूज टू स्टडी लेट एट नाइट ड्यूरिंग दोज डेज. आई यूज टू गो टू मूवीज. तो ऐसे यूज टू माने हैबिट के लिए यूज़ करते हैं. We have reached the station early to catch the train. We have to reach the station early to catch the train. अगर ट्रेन को कैच करना है तो we have to, यानी ये must का सेंस दे रहा है, ये तो have to आएगा. यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला have नहीं है, must का सेंस देने वाला have to है. You ought stop at traffic signals. You ought to stop at traffic signals. You ought read this book. It is very good. You ought to read this book. It is very good. ought to का एग्जाम्पल जो है ये अच्छे से याद रखना चिल्ड्रन, ये एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है. ought के साथ to यूज़ होता है हमेशा. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव देम. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. Now let us look at worksheet 6. Read the following sentences and tick the correct option. I am so tired that I want to lie down and go to sleep. यहाँ पे to lie आएगा. I want to lie. I want lie नहीं बोलेंगे. I want to lie down and go to sleep. यहाँ पे to go नहीं आएगा. Let us look at the second one. It is easier to flatter than praise. First one में to flatter यूज़ करेंगे और second one में हम praise को यूज़ करेंगे. जब हमने किसी कंजंक्शन के साथ टू इन्फिनिटिव्स को ऐड किया है, जैसे इट इज़ ईजियर टू प्रेज, इट इज़ ईजियर टू फ्लैटर, ये दो अलग सेंटेंसेस हैं. इनको हमने दैन यूज़ करके दोनों को कनेक्ट किया है. इट इज़ ईजियर टू फ्लैटर दैन प्राइज. सेकेंड सेंटेंस में टू नहीं आएगा. ओके जब सेकेंड सेंटेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो दैन को यूज़ करके तो टू नहीं आएगा. आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक दो एग्जाम्पल्स में और समझा दूंगी. Now let us look at the third one. Tanvi is ready to go anywhere but visit Delhi. यहाँ पे देखो ये to go ये भी इन्फिनिटिव है. Now second one जो है to visit Delhi ये भी इन्फिनिटिव है. यहाँ पे हमने दोनों इन्फिनिटिव्स को but को यूज़ करके कनेक्ट किया है. तो पहले इन्फिनिटिव में to आ जाएगा और सेकेंड इन्फिनिटिव में to जो है वो हट जाएगा और सिर्फ visit को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके अभी क्लियर हो गया ना आपको? तो गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स अपॉन दिस. ओके नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन. आई लाइक टू रीड एज वेल एज राइट पोएट्री. इसमें टू रीड आ गया तो इसमें टू राइट नहीं आएगा. डू यू वॉन्ट टू मीट द क्लाइंट्स नाउ और वेट टिल इवनिंग. इसमें हमने टू मीट को ले लिया तो यहाँ पे हम सिर्फ वेट को यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम टू वेट नहीं लेंगे क्योंकि ये कनेक्ट हो रहे हैं और को यूज़ करके. ये कंजंक्शन और है, लिंकर है, ये आपके चैप्टर में इसका नाम लिंकर्स हैं, कंजंक्शंस हैं ये. तो और को हमने यहाँ पे यूज़ किया है. नाउ लेट अस लुक एट द सिक्स्थ वन. ऋषि हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट वॉच टीवी. यहाँ पे टू डू को ले लिया हमने तो यहाँ पे टू वॉच को नहीं लेंगे, वॉच को यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस लुक एट द सेवेंथ वन. Riti has to work as well as look after her family. I have to buy vegetables and cook food. It is better to live in obscurity than be notorious. To live यहाँ पे लिया तो यहाँ पे हम सिर्फ be को यूज़ करेंगे. Notorious means जो badly famous है. Notorious means who is very badly famous. I would like to visit Kolkata and see the Howrah Bridge. यहाँ पे हम see को यूज़ करेंगे, to see को हम यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर ये वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने अभी बताई आपको. When two infinitive structures are joined by linkers such as and or but than except as well as, the second one is mostly without to. second one में to नहीं आएगा. Now let us look at worksheet 7, the ing form. See ing form में जो है पहले हम participle को देखेंगे कि participle क्या है. ए वर्ड विच इज़ लाइक अ वर्ब, जो वर्ब की तरह दिखता है बट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल. पार्टिसिपल उसको कहते हैं जो वर्ब है
जो वर्ब से बना है और देखने में भी हमें वर्ब की तरह ही दिखता है, बट वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करता है। ए पार्टिसिपल हैज़ टू फॉर्म्स, इसके टू फॉर्म्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इंग फॉर्म वाला होता है, जो वर्ब में आईएनजी को ऐड करके बनाते हैं, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल जो एंड होता है EDTDNEN, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे। सी द ब्रोकन कप, कप नाउन है यहाँ पे, ब्रोकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। हाउ डू यू नो कि पास्ट पार्टिसिपल है? यहाँ पे ये कप को डिस्क्राइब कर रहा है कि कप जो है टूटा हुआ है, सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, दिस इज past participle over here. The broken cup was thrown away. Here are a few more examples of participles. The sleeping boy, sleep, sleep generally क्या है? verb है, action है, तो ये एक verb है, इसको ing हमने ऐड कर दिया तो ये sleep verb है, ing ऐड हो गया, noun के बारे में बता रहा है, boy noun है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये क्या है? पार्टिसिपल है तो वर्ब ही है, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है बट ये पार्टिसिपल है। ये क्या है? ये वर्ब प्लस आईएनजी जब दोनों मिलते हैं और ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। द स्लीपिंग बॉय, बॉय क्या कर रहा है यहाँ पे? स्लीपिंग बॉय, बॉय सो रहा है, तो दिस इज ए पार्टिसिपल। ऐसे वर्ड्स को हम पार्टिसिपल कहते हैं जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं और वर्ब को आईएनजी ऐड होके बनते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जीरेंड है, ये भी बिल्कुल पार्टिसिपल की तरह ही दिखता है। इन दोनों में जैसे ट्विन्स होते हैं ना, वैसे हैं ये जीरेंड और पार्टिसिपल, बिल्कुल ट्विन्स की तरह दिखते हैं और हमको थोड़ा पहचानने में मुश्किल होती है, बट जैसे आप करोगे एक्सरसाइज आप समझ जाओगे। जीरेंड जो है वो भी वर्ब से बनता है, पीछे आईएनजी होती है उसके भी, बट ए जीरेंड एक्ट्स लाइक ए नाउन। जीरेंड जो है ए वर्ड विच इज लाइक ए वर्ब बट acts like a noun is called a gerund. Now let us look at the example. He is fond of wearing sunglasses. See here, wearing ये क्या है? verb है, ing ऐड हुआ है। अब ये noun की तरह है कि या ये adjective की तरह काम कर रहा है। He is fond of what? यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल लो what, जैसे ही आप what क्वेश्चन डालोगे अगर पीछे ऑब्जेक्ट आंसर दे रहा है इज फॉन्ड ऑफ what? वेयरिंग सनग्लासेस, तो ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सी यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि पार्टिसिपल और जीरेंड में डिफरेंस क्या है। पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, एक वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब एंड एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। जीरेंड इज ए वर्बल नाउन, एक वर्ब जो नाउन की तरह वर्क करता है वो जीरेंड है। ओके, now let us look at worksheet 8. Read the sentences given below and write P for participle and G for gerund. Ramit is fond of playing cricket. Fond of what? यहाँ पे क्वेश्चन डाले ना, fond of what? Playing, तो ये playing जो है ये gerund है। क्या है ये? gerund है। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स हमेशा nouns होते हैं इसलिए ये gerund है। Can you stop? What? यहाँ पे क्वेश्चन डाल लो what? वर्ब पे जैसे आपने क्वेश्चन डाला व्हाट तो इमीडिएटली आंसर आ रहा है कंप्लाइनिंग, सो दिस इज आल्सो जीरेंड। द ग्रम्बलिंग बॉस लेफ्ट द ऑफिस इन ए हफ। ये ग्रम्बलिंग वर्ड जो है बॉस को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है यहाँ पे, सो दिस इज ए पार्टिसिपल। नाउ इट इज क्लियर चिल्ड्रन कि पार्टिसिपल जो है डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को और जीरेंड्स जो है एक नाउन की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मुझे एक लाइक ज़रूर दें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वॉशिंग डिशेस इज़ ए टायरिंग चोर, सी इज़ एक्टिंग लाइक ए नाउन, तो यहाँ पे हमने इसको जीरेंड लिखा है। स्माइलिंग पीपल हैव मोर फ्रेंड्स, पीपल यहाँ पे नाउन है, स्माइलिंग यहाँ पे इसको पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्माइलिंग पीपल, सो दिस इज़ पार्टिसिपल। ओवर स्पीडिंग ऑन रोड इज एन ऑफेंस, दिस इज ए जीरेंड, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, अगेन दिस इज ए नाउन, स्मोकिंग इज ए नाउन हियर, तो यहाँ पे हमने जीरेंड लिखा है। द एक्टर स्टार्टेड combing her hair, combing, the actor started what? Combing, तो this is also gerund.
Withering leaves often indicate the arrival of winter. Withering ing फॉर्म है, यह आपको डिस्क्राइब कर रहा है, लीव्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, लीव्स विदर हो रहे हैं, तो अगेन दिस इज पार्टिसिपल. अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है देन इट इज ए पार्टिसिपल. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 9. राइट प्रॉपर सेंटेंसेस यूजिंग infinitive or ing forms. One example has been done for you. Amit likes play football. Amit likes playing football या Amit likes to play football. ऐसे हमें आप सेंटेंसेस बनाने हैं कि to play आएगा या ing आएगा, इसमें दोनों सही है. Let us look at the second one. I want go watch a play tonight. I want to go to watch a play tonight. यहाँ पे to go ये इन्फिनेटिव है, to watch भी इन्फिनेटिव है. I want to go to watch a play tonight. दोनों जगह पे to आएगा, बीच में कोई कनेक्टर नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह पे हम to को यूज़ करेंगे. I don't like leaving things half done. यहाँ पे ing वाला ले लेना. I don't like leaving things half done. I like visit my aunt's place. I like to visit my aunt's place. You must try to reach your school on time. यहीं पे आप you must try reaching your school on time भी बोल सकते हो. I avoid talking to strangers. See children, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. यहाँ पे to जो है ना, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे टॉकिंग यूज़ किया है हमने और पीछे to को भी ले लिया. ये प्रीपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव का to नहीं है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम ने यहाँ पे टॉकिंग बोला और यहाँ पे to ले लिया. टॉक to होना चाहिए ना मैम ने, टॉकिंग to करेक्ट है. She loves to cook pasta. I want to read the Vedas someday. What do we use a pen for? We use a pen for writing. We use a pen to write with. दोनों सही हैं. आप इसी तरीके से यहाँ पे sentences बना सकते हो. We use a knife for cutting. We use a knife to cut with. What do we need a lamp for? We need a lamp for lighting. We need a lamp to light with. Why do we need a table cover? We need a table cover for covering. We need a table cover to cover with. This one is very easy children. इस exercise को आप खुद भी कर सकते हो. What do we need a comb for? We need a comb for combing. We need a comb to comb with. एक comb, b का साउंड ज़्यादा नहीं आना है इसमें, b का साउंड साइलेंट है. comb कहते हैं इसको, comb नहीं कहते हैं, comb कहते हैं. Okay? Now let us look at worksheet 11. Fill in the blanks with the ing form of the verbs given in the box below. Take, complain, wear, laugh, help, dine, boast, go, do, drink. इस verbs को लेके आपको यहाँ पे fill करना है. Let us look at the first one. You can't deny. Deny माने मना करना. You can't deny complaining against me to the teacher. Complaining यानी तुमने complain किया मेरे ऊपर. Now you can't deny. Do you mind helping me in this project? ing helping. She disliked wearing western outfits. We enjoy dining out. He went on boasting about his acting ability. Boasting means अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताना, सेल्फ का बोलना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ. This is called boasting. I couldn't help laughing at the joke. Imagine going to mass one day. He kept on doing his work silently. Can't you avoid drinking so many colas? Now let us look at the 10th one. I suggested taking some other route to the destination. Now let us look at worksheet 12. Use the following verbs in your own sentences using the ing as well as the to infinitive form. So यहाँ पे जो verbs दिए हुए हैं ये ऐसे verbs हैं जिनके पीछे either you need to use ing form और infinitive form. कोई ना कोई पीछे आपको infinitive या फिर ing form का verb use करना होगा. तो ऐसे वर्ड्स हैं ये, तो इनको हम यहाँ पे ing फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं और टू इन्फिनेटिव भी यूज़ करके सेंटेंसेस को बना रहे हैं. I continued working hard. This is ing form working hard. I continued to work hard. To work ये इन्फिनेटिव फॉर्म है. Start भी ऐसा ही वर्ब है. I started going out. Going ing फॉर्म को यूज़ किया हमने. I started to go out. Going यहाँ पे gerund का काम कर रहा है. I started to go out. ये यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव को टू इन्फिनेटिव को यूज़ किया है. Now let us look at the next one. Propose. I proposed going out for a camp.
प्रपोज्ड व्हाट, गोइंग आउट। तो यहाँ पे ये जीरंड का काम कर रहा है चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे इंग फॉर्म को यूज़ कर लिया, हमें यहाँ पे जीरंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे इंग फॉर्म को यूज़ किया है। आई प्रपोज टू गो आउट फॉर ए कैंप। टू गो इन्फिनेटिव है, हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया है। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वर्ब, ट्राई। वी ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी ट्राइड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Let us look at the next verb, intend. I intend to opt for science stream. ये to opt पहले ले लिया यहाँ पे। I intend opting for science stream. Okay. Now let us look at worksheet 13. Develop a story using the hints given below. यहाँ पे hints दिए हुए हैं, इसमें से हमें story बनानी है. Use as many infinitives, participles or gerunds as you can. Underline the infinitive and the ing form wherever used. अमन प्रिफर्स स्मोकिंग इन बेड। यहाँ पे ING फॉर्म यूज़ किया है हमने, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ये जीरंड है चिल्ड्रन। अमन प्रिफर्स व्हाट, स्मोकिंग, तो ये जीरंड है ना, स्मोकिंग इन बेड। अमन नोज दैट स्मोकिंग इन बेड इज़ ए बैड हैबिट। स्मोकिंग को वापस अंडरलाइन करना। वन डे ही फेल asleep while smoking. Suddenly when he woke up he saw the burning sheet. He jumped up the bed and put the fire out. He was astonished to see यहाँ पे ये क्या है, इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है, to see a big hole in sheet. He realized how dangerous it is to smoke in bed. Again to smoke इन्फिनेटिव है. He resolved never to smoke in bed. To smoke again यहाँ पे इन्फिनेटिव है. Let us look at do it yourself. The following passage has not been edited. ये एडिटिंग काफ़ी बार आपने की होगी, एग्जाम में भी आती है, कुछ मिस्टेक्स देते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिश इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। फिशिंग, फिश नहीं कहेंगे ना, फिशिंग नाउन है, फिशिंग जो है जीरंड है, तो यहाँ पे फिशिंग आएगा। फिशिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। आई ऑफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग, कैच नहीं, विदाउट कैचिंग एनीथिंग। सम फिशरमैन इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश, कैचिंग कहेंगे, कैच फिश नहीं कहेंगे, कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश। आई नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैचिंग आएगा, कैच नहीं आएगा। फॉर कैचिंग एनीथिंग यू मस्ट गिव अप कैचिंग फिश, माई फ्रेंड्स से। क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता तो फ्रेंड्स तो कहेंगे ही कि इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ दिया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन सिटिंग है यहाँ पे, सिट है, इन नहीं है, ये गलती से मैंने डाल दिया यहाँ पे, मार्क तो कट किया है, सिट है यहाँ पे, सिट को यूज़ करना। आप सिट क्या लिखेंगे हम, सिटिंग इन ए बोट एंड डू नथिंग। माई एम इज़ टू फूल माई फ्रेंड्स। फूलिंग नहीं आएगा, फूल बोलेंगे। माई एम इज़ टू फूल माई फ्रेंड्स। नाउ लेट अस लुक एट पैरा 2. Complete the following passage by filling the blanks with correct form of non-finites given in the brackets. As the evening wore on, I saw the loading of food in the hold of the ship. I was especially thrilled when 2 helicopters landed on the deck. In the sunlight, the helicopters glowed, which was meant for spotting them easily. When one is at sea, the helicopters are not allowed to stay out in the open for fear of strong winds blowing them off the deck. By evening, many scientists had gathered on the deck. They were chatting and joking with one another. Some of them were tall and hefty. Some were even fit to be in a circus. So funny in appearance. I noticed a bearded man, and when I looked at him, he looked the other way and started lighting a cigarette. I thought of asking my uncle. I thought of to ask, नहीं बोलेंगे, off है, I thought of asking my uncle. I thought to ask my uncle बोल सकते हैं, जब off आ गया तो आप यहाँ पे asking लिखोगे, asking my uncle about this strange man, but gave up thinking that it might be just nothing. At the sunset, all the lights of the port were switched on. The sea was beautiful to look at. The anchor was then lifted and the quay began to move in the opposite direction. Some people on the quay raised their hands, waving to us. The ship began to sway slowly like a cradle. आई होप चिल्ड्रन कि आपको मेरा ये सारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। जहाँ जहाँ मैंने नेसेसरी फील किया मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स ए लॉट। शेयरिंग इज केयरिंग. Please do share my videos with your friends. Thanks for being with us.